y इक्वल 20 है ना। तो उस वक्त क्या होता है, हम मेमोरी में एक वेरिएबल बनाते हैं, एक जगह लेते हैं, उसका नाम x रखते हैं और दूसरे का नाम y रखते हैं। फिर हम x में क्या 10 डालते हैं और y में 20 डालते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, आगे। 20, right? What we are exactly doing in this calling procedure, we are passing the values of x and y to the function definition, which is available over here. These values 10 and 20 will get passed to these variables x and y. Let me declare these variables over here, x variable and y variable. These variables now contain values 10 and 20, right? Now inside this function, we are changing the value of x to 20, that is what we are doing here, and we are changing the value of y to 10, that is what we are doing here. So variable x will now contain value 20 and variable y will contain value 10. Now please note down that these variables are local to this function. When this function procedure finishes, we get back to this calling procedure and these variables will get destroyed, right? And whatever the changes you made in these variables will not get reflected back to these variables. So if we try to print the values of x and y, the output is x equals to 10 and y equals to 20. They are the original values. This is what we need to understand about the call by value. In call by value procedure, you're simply passing the values to the variables and not the variables itself. So whatever the changes you made to these variables will not get reflected back. This is called call by value. Now let's try to understand what is call by reference. Here, both actual and formal parameters refers to same memory location. Please note down this point. Therefore, any changes made to the formal parameters will get reflected to actual parameters. Whatever the changes you made to the formal parameters will get reflected to actual parameters. Also, here instead of passing values, we pass addresses. We are not passing the values, we are passing the addresses. Like for example, here we have two variables x and y. Let me declare them over here. Variable x and they have addresses 1000 and देखिए इसका मेमोरी एड्रेस है, x एक वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन x का जो मेमोरी एड्रेस है ये 1000 है। इस तरह y एक वेरिएबल है, जो y का मेमोरी एड्रेस है वो है 2000। एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यानी जिस जगह हमने x के लिए जगह बनाई मेमोरी में, उस जगह का एड्रेस है 1000। इन द सेम वे मेमोरी में y के लिए जो जगह हमने चुन ली, तो उसका एड्रेस है कितना, 2000 एड्रेस। ओके, 2000 respectively. Now the value of x is 10 and value of y is 20. क्या इस तरह x के लिए इसमें 10, y के लिए 20 इसमें है ना, x में 10 डालते हैं और y में 20 डालते हैं, यानी हम 1000 के एड्रेस पर 10 डालते हैं और 2000 के एड्रेस पर हम 20 डालते हैं। ओके, Here you can notice the difference. Here instead of writing x and y directly, we are also mentioning these ampersand operators, which are also called as address of operators. That means we are simply passing the addresses of these variables instead of passing the values. Here ampersand of x means address of x and ampersand of y means देखिए यहाँ क्या होता है, जब हम कॉल बाय वैल्यू करते थे ना, तो हम यहाँ क्या लिखते थे, वहाँ फन x कामा y लिखते थे ना, वहाँ हम एंड x लिखते थे, वहाँ हम लिखे x कामा y, यानी हम वहाँ x की वैल्यू पास करते थे और y की वैल्यू पास करते थे। x की वैल्यू पास करा, बेस y की वैल्यू पास करा, इसने करा, यानी हम वहाँ x यानी 10 पास करते थे x की वैल्यू, और y पास करते यानी 20 पास करते थे। इस वक्त हम यहाँ क्या पास करते हैं, एंड x एड्रेस ऑफ x, यानी x इस वक्त हम यहाँ से 1000 पास करते हैं, ना कि 10। हम 10 नहीं पास करें, हम 1000 पास करें, यानी x का एड्रेस। हाँ, एंड y मींस हम y का एड्रेस पास कर रहे हैं, यानी 2000 पास कर रहे हैं। बात आ गई समझ में? व्हाट इज एड्रेस, पासिंग एड्रेस एंड पासिंग वैल्यूज। पासिंग वैल्यूज में हम जो अंदर वैल्यू हमने रखा है वही पास करते हैं, और पासिंग एड्रेस में हम उस वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं, यानी कॉल बाय वैल्यू में हम वैल्यू पास करते हैं और यहाँ हम उन वेरिएबल्स का एड्रेस पास करते हैं। यानी जो यहाँ अब एंड x जो दूसरी जगह हम भेजते हैं वो 1000 भेजते हैं, और एंड y हम 2000 भेजते हैं।
Okay. Address of point. Therefore, in the definition of the function, address of x and y is received instead of values. Okay. Now, as addresses are received by this function, therefore some special kind of variable is required to store them. As we declare a variable over here in the parameters list, then they are not capable enough to hold the addresses. Therefore, we require special variables which are also called as pointers. Pointers are those variables which can store addresses of some other variables. This is the way you declare a pointer. We'll talk about pointers later in greater details, but right now it is important for us to know that pointers are those variables which can store addresses. Let me declare these pointers over here. This is ptr1 and here is the ptr2. ptr1 stores the address of variable x, which is 1000. Therefore, 1000 will get stored inside this pointer ptr1, and ptr2 will store the address of variable y, which is 2000. Now, inside this function, we have two statements: star ptr1 equals to 20, star ptr2 equals to 10. Now, here is one important point we need to understand. Whenever we simply write a variable, suppose x, then this simply means that we are accessing the content of that variable. Now, if we write simply ptr1, that means we are accessing the content of ptr1, and the content of ptr1 is the address of the variable x, right, which is 1000. If we write star in front of ptr1, this simply means that access the value of that particular address. Okay, this particular operator is called as dereference operator, which is just opposite to this operator ampersand. It is also called as reference operator. So what does it really mean? When we simply write ptr1, we are accessing the content of ptr1, which is 1000. Therefore, ptr1 will get replaced by 1000, right? Now, when we write star in front of 1000, that means we are trying to access the content of this particular address 1000. This means we are mapping 1000, right? And this simply means we are trying to access the content of variable x, which is 10. Now here I'm assigning 20. That means we are changing this value to 20, right? Similarly, when we are writing ptr2, we are trying to access its content, which is 2000. And when we write star, we are simply mapping it. That means we are mapping this location 2000. And we are trying to access the content of this particular memory location, which is actually variable y, right? Now, as we are assigning 10 to it, therefore this value will get replaced by value 10. As this function finishes, therefore we come back to this calling procedure, and after that, simply print the content of x and y, as now in this case, the value of x will get... ये क्या होता है यहाँ? फन एंड एक्स कॉमा एंड वाई, यानी हम यहाँ एक्स का जो एड्रेस है वो पास करते हैं और यहाँ वाई का एड्रेस पास करते हैं. तो यहाँ हमने क्या लिखा, ये फंक्शन कॉल है यहाँ, तो यहाँ हम फंक्शन डिफिनेशन लिखते हैं इंट फन इंट स्टार ptr1. देखिए, जब हम एड्रेस पास करते हैं तो एड्रेस को लेने के लिए हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं. एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें पॉइंटर वेरिएबल की जरूरत होती है. जब हम किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं दूसरे वेरिएबल में, तो जो दूसरा वेरिएबल जो उसका ये वैल्यू स्टोर करता है, उसका एड्रेस स्टोर करता है, दैट शुड बी पॉइंटर वेरिएबल. समझा रही बात? इसलिए हम यहाँ लिखते हैं स्टार ptr1, यानी स्टार ptr1 का मतलब है ptr1 एक पॉइंटर वेरिएबल है. इन द सेम वे ptr2 भी एक पॉइंटर वेरिएबल है, यानी ptr एड्रेस स्टोर करेगा ptr1 और ptr2 भी एड्रेस स्टोर करेगा. बात आएगी समझ में? हाँ, यस सर. ptr आप किसका एड्रेस स्टोर करेगा? ये आप x का एड्रेस स्टोर, हम यहाँ x का एड्रेस पास कर रहे हैं, यानी ptr1 में आप क्या है 1000 है, यानी x का एड्रेस क्या है? x का एड्रेस है 1000, है ना? 1000. तो ptr1 में क्या जाएगा 1000. इन द सेम वे स्टार ptr2, इसमें y का एड्रेस जाएगा, तो y का एड्रेस है 2000, तो स्टार ptr2 में 2000 जाएगा. सिंपल आ गया ना? यानी स्टार ptr1 में 1000 आ गया और स्टार ptr2 में 2000 आ गया.
ठीक है, यानी आप यहाँ याद रखिए, जब भी आप यहाँ एड्रेस पास करते हो एंड एक्स कामा एंड वाई, जिसके साथ एंड हो, तो यहाँ आपको स्टार लगाना जरूरी है। बात आ गई समझ में? जब आप फंक्शन को कॉल करते हो बाय रेफरेंस, यानी आप यहाँ एंड लगाते हो, एंड लगाते हो, तो एंड के सामने यहाँ स्टार होना जरूरी है। फंक्शन डिफिनेशन लिखो, तरीके स्टार जरूरी, ठीक? Okay, and this and is called a reference operator and this star is called a dereference operator. हाँ, अब हम फंक्शन के अंदर जाते हैं। इसके बाद लिखते हैं स्टार ptr1 is equal to 20, स्टार ptr1 is equal to 20। हाँ, ptr1 में क्या स्टोर है? 1000 स्टोर है। अगर मैं लिखूं स्टार ptr1, इसका मतलब है ptr में जिसका एड्रेस स्टोर है वो वैल्यू हमें चेंज करना है। अगर ptr1 लिखो तेल को 1000 स्टार ptr1 को ptr मज यम जाय एड्रेस स्टोर सु वैल्यू एक्सेस कर। बात आएगी समझ में? स्टार ptr1 क्या? ptr1 को ptr1 means 1000 स्टार ptr1 वो 1000 मज कुछ एड्रेस स्टोर तथ जाए क्या वैल्यू 1000 करो चेक करो मैपिंग ये 1000 वापस गसन सह कत ये 1000 अच्छा ये 1000 में स्टोर कोरमुत स्टार ptr1 मतलब को तुम गो वापस तथ जाए या जाए एड्रेस तत वो वैल्यू क्या वैल्यू 20। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ 20 डालते हैं। ठीक है, यानी स्टार ptr1 में हम 20 डालते हैं, तो क्या 20। ओके, फिर स्टार ptr इक्वल टू 10 गो ptr2 मज पत वो तथ मज कुछ एड्रेस सो एड्रेस कत 2000 गो 2000 पे वापस वो एड्रेस कत 2000 है ना? ओके, हमने डाल दिया 10। देखिए यहाँ हमने इन्हीं दो में चेंज की। क्या एक्स 20, वाई क्या 10, एक्स 10, वाई क्या 20। वकिस क्या गो एक्स गो 20, वाई गो 10 वेरिएबल का इस्तेमाल यानी अस कर ये चेंज करना ये तो चेंज ये क्या करे एक्स लिखा गो एक्स इक्वल टू 10 एंड वाई इक्वल टू 20, ठीक 20 पत कर ये चेंज अस त्रो यत 20 यत 10 मगर नमे गई चेंज गया चेंज। ठीक है, तो हम अगर कोई भी चेंज यहाँ करते हैं, अगर ये चेंज करो फॉर्मल में, ठीक है, लेकिन जब पॉजिटिव वैल्यू करते हैं अगर वहां कोई चेंज यहाँ करते हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, क्योंकि वहां हम एड्रेस नहीं पास करते हैं, वहां हम और दो वेरिएबल बनाते हैं। अक बनाते एक्स वाई पे योर बना बिज वेरिएबल, अगर तुम दोन वेरिएबल में चेंज करो सह रिफ्लेक्ट योर गसन कह। समझ आ गई बात? यहाँ हम ptr1 में इसका एड्रेस स्टोर करते हैं और ptr2 में इसका एड्रेस स्टोर करते हैं y का। ठीक है, तो फिर जब उसको ptr1 इक्वल 20 तो उस एड्रेस पे जाता है, 1000 के एड्रेस पे जाता है, उसको चेंज करता है। जब स्टार ptr2 इक्वल टू 10 लिखते हैं तो 2000 एड्रेस पे जाता है और ये चेंज करता है। आज कुछ समझ आ गया? यस सर। ओके, 20 y equals to 10. So this is the major difference between a call by value and call by reference. When we are saying call by value, we are passing the copies or values of the variables to the other variables in the definition. And when we are saying call by reference, then in that case, we are passing the addresses to the other function which are received by the pointers. When you are passing the addresses to the function, then you can access those addresses and can change the content available in those addresses, which will get reflected back, and hence we can observe the changes even after function finishes. Okay friends, this is it for now. Thank you for watching this presentation. ठीक से अब दोबारा स्लाइड्स पे आ जाएंगे।
देखिए कॉल बाय वैल्यू, when we call a function by passing the values of the actual parameters to the formal parameters. कॉल बाय वैल्यू में क्या हम वैल्यू पास करते हैं, जो आपने अभी देखा इसमें वीडियो में, हम एक्चुअल पैरामीटर्स पास करते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स में. Any change made into formal parameters is not reflected in actual parameters. अगर हम फॉर्मल पैरामीटर कोई चेंज करते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर्स में जाहिर नहीं होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ एग्जांपल है राइट में a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20, यानी a में मैंने 10 डाल दिया और b में 20 डाल B में 20. फिर मैं कॉल करता हूँ एड a कामा b, एड a कामा b, फिर ये कॉल यहाँ आएगा void add int x कामा int y. तो ये क्या करता है, सीधे a का वैल्यू x में कॉपी करता है और b का वैल्यू किस में कॉपी करता है, y में कॉपी करता है. अगर फिर मैं चेंज करना है x इक्वल टू x प्लस 50, x की वैल्यू में 50 बढ़ाता हूँ यानी वो बन जाएगा 60, और y की वैल्यू में 100 वो बनेगा 120. x और y की वैल्यू यहाँ चेंज होगी लेकिन यहाँ a और b वही रहेगी 10 20. ठीक है, ये हो गई कॉल बाय वैल्यू. दिस इज कॉल बाय वैल्यू. हाँ, अब कॉल बाय रेफरेंस. When we call a function by reference, we pass the address of actual parameters into the formal parameters. आपने अभी देखा एड्रेस कैसे पास करते हैं. एक वेरिएबल का एड्रेस था 1000, दूसरे वेरिएबल का एड्रेस था 2000, है ना. तो हमने क्या किया, 1000 को पास किया x में और 2000 को भी पास किया y में. अभी आपने जो वीडियो देखा किया ना, तरीके वैल्यू इस पास की क्या करो इस पास तरीके इस तेम वेरिएबल Address. Okay. Any change made in the formal parameter is reflected into actual parameters. अभी आपने देखा हमने वहां चेंज की, वहां x 10 था y 20 था पहले, फिर हमने क्या किया, हमने x को 20 बना दिया और y को 10 बना दिया, लेकिन दोनों जगह वो चेंज हो गया, है ना. अगर हम एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर कोई चेंज करते हैं वो चेंज हम एक्चुअल पैरामीटर्स में भी देखते हैं. We use pointer variables to collect the address of the actual parameters. हाँ, एक बात है यहाँ, जब हम एड्रेस यहाँ पास करते हैं हम यहाँ लिखते हैं एंड एक्स एंड वाई लिखते हैं ना. जब रेफरेंस करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, कॉल में हम लिखते हैं एंड एक्स कामा एंड वाई लिखते हैं ना. तो एंड एक्स का मतलब है हम एड्रेस पास करते हैं एक्स का, एंड वाई का मतलब है हम वाई का एड्रेस पास करते हैं. तो एक्स का एड्रेस लेने के लिए हमें एक स्पेशल वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल. पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है. एड्रेस हम नॉर्मल वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक स्पेशल वेरिएबल होता है दैट्स कॉल्ड पॉइंटर वेरिएबल. और पॉइंटर वेरिएबल की निशानी है वहां हम लिखते हैं स्टार एंड वेरिएबल नेम स्टार. हाँ, तो हमने वहां लिखा था स्टार ptr1 और दूसरा लिखा था स्टार ptr2. याद आ रहा आपको, स्टार ptr1 एंड स्टार ptr2. यानी हम x का एड्रेस पास करते हैं वो ptr में रखते हैं, लेकिन ptr क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है. क्यों पॉइंटर वेरिएबल है, क्योंकि उसको x का एड्रेस स्टोर करना है. बात आगे समझ में. इस तरह एंड y हम पास करते हैं, हम y का एड्रेस पास करते हैं तो वहां किस में रखते हैं, ptr2 में, लेकिन वहां हम लिखते हैं स्टार ptr2. क्यों स्टार ptr2 लिखते हैं, स्टार का मतलब ये पॉइंटर वेरिएबल है. पॉइंटर क्या है, क्योंकि इसको y का एड्रेस स्टोर करना है. पता है कि समझ में. पॉइंटर अब पॉइंटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है पॉइंटर इज ए वेरिएबल एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, Address of another variable. दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है. हाँ, देखिए यहाँ int a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20. मैंने दो वेरिएबल बनाए a और b, a में 10 रखा b में 20 रखा. एंड a कामा एंड b, ठीक. तो मैं फिर एक कॉल करता हूँ, फंक्शन कॉल करता हूँ, फंक्शन का नाम है ऐड, लेकिन क्या करता हूँ यहाँ a का एड्रेस पास करता हूँ और यहाँ b का एड्रेस पास करता हूँ. ओके, जब ऐड आएगा तो ऐड को ढूंढेगा ये फंक्शन कहाँ है, तो यहाँ आएगा. फिर यहाँ मैं इंट स्टार x यानी मैं a का एड्रेस x में रखता हूँ, लेकिन x के सामने स्टार रखता हूँ क्योंकि मुझे इसमें a का एड्रेस स्टोर करना है, इसलिए स्टार रखता हूँ. सेम वे एंड b इंट स्टार x, b का एड्रेस, एंड b मींस b का एड्रेस किस में जाएगा, y में जाएगा, लेकिन y क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है. क्यों, क्योंकि इसमें हमें b का एड्रेस स्टोर करना है, न कि b का वैल्यू. ओके, अगर हम यहाँ स्टार x इक्वल टू स्टार
x प्लस 50, अगर मैं यहाँ कोई चेंज करूंगा x की वैल्यू में स्टार x प्लस 50, तो वो क्या होगी, वो वहां रिफ्लेक्ट होगी एक्चुअल वैल्यू में भी। b में भी, यानी a की वैल्यू भी चेंज होगी और b की वैल्यू चेंज होगी। अगर मैं कोई चेंज यहाँ करूंगा, x की वैल्यू कम करूंगा या बढ़ाऊंगा या कुछ भी करूंगा, वो a में भी होगी। जो x की वैल्यू यहाँ बन जाएगी वो a की वैल्यू यहाँ बन जाएगी, जो यहाँ y की वैल्यू बन जाएगी वो यहाँ b की वैल्यू बन जाएगी। यानी आप ऐसा समझिए, जो यहाँ है ये इसकी इमेज है, किसकी इमेज, a और b की। a की इमेज है x और b की इमेज है y, ठीक है। अगर इमेज में कोई चेंज होगी तो वो वहां दिखाई देगी, ठीक है। जैसे आप शीशे के सामने होते हो, आप मिरर के सामने देखते हो, तो आप जो भी चेंज अपने आप में लाते हो वो किस में आप दिखाई देते हैं, इमेज में, मिरर में दिखाई देते हैं, ठीक है ना। जब मिरर के सामने होते हो, मिरर में देखते हो अपने आप को या कुछ करते हो, ठीक, तो क्या आप जो भी चेंज करते हो अपने आप में, तो वो कहाँ देखते हो आप, वो मिरर में देखते हो, ठीक है। सेम इज कैसी है, जो आप यहाँ x में चेंज करते हो वो यहाँ a में होगी, वो जो y में चेंज करते हो वो यहाँ b में होगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। और मैं इसमें डिफरेंस पॉइंट्स भी लिखे हैं, क्या है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, वी कॉपी द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स इन द फॉर्मल पैरामीटर्स। हम एक्चुअल पैरामीटर्स को फॉर्मल पैरामीटर्स में कॉपी करते हैं। हाँ, कॉल बाय रेफरेंस में क्या करते हैं, we pass the address of actual parameters in the formal parameters। हम एक्चुअल पैरामीटर्स का एड्रेस फॉर्मल पैरामीटर्स में पास करते हैं, कॉपी करते हैं। हाँ पास करते हैं एड्रेस में। अगर वहां क्या करते हैं, कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू पास करते हैं, यहाँ एड्रेस पास करते हैं, एड्रेस। हाँ। चेंजेस मेड इन फॉर्मल पैरामीटर्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द एक्चुअल पैरामीटर्स। कॉल बाय वैल्यू में क्या है, अगर हम फॉर्मल पैरामीटर्स को चेंज करते हैं, वो चेंजेस हम एक्चुअल पैरामीटर्स में नहीं देख सकते हैं। यस सर। हाँ, कॉल बाय रेफरेंस में क्या, एनी चेंज मेड इन द वैल्यू ऑफ द फॉर्मल पैरामीटर्स, अगर हम फॉर्मल पैरामीटर्स में कोई चेंज करते हैं, इज रिफ्लेक्टेड इन एक्चुअल पैरामीटर्स में भी होती है, यस सर। ठीक है। जो भी चेंज हम नीचे करते हैं वो ऊपर भी दिखाई देती है। नंबर 3, एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स हैव डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस। जब हम यहाँ बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू में, तो जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं वो हम एक जगह स्टोर करते हैं, जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, जो फॉर्मल वेरिएबल्स हैं, वो हम दूसरी जगह स्टोर करते हैं। उनका एड्रेस एक होता है, उनका एड्रेस दूसरा होता है। यानी वहां हम 4 वेरिएबल बनाते हैं, 2 किसके लिए, वो एक्चुअल पैरामीटर्स के लिए बनाए हमने, तो हमने फॉर्मल पैरामीटर्स के लिए बनाए अलग, वो अलग है, वो अलग है। लेकिन यहाँ क्या है, कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स शेयर द सेम मेमोरी लोकेशन। यहाँ एक ही मेमोरी होती है, मेमोरी वही 2 वेरिएबल हम इस्तेमाल करते हैं जो हमने पहले बनाए हैं, सिर्फ हम एड्रेस चेंज करते हैं, ठीक है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। बता अभी किसको समझ नहीं आया, बोलिएगा। मैरीन आपको समझ आया? यस सर। ओके, यासीन आपको समझ आया? यास्मीना, कुरत आपको समझ आया? यस सर। ओके, उज़मा आपको, उज़मा आइए, उज़मा वो चली गई है, मैं नहीं है। ठीक है, अगर कोई और भी कंफ्यूजन है आपको तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं वो भी दूर करूंगा। जो भी कंफ्यूजन आपको रहेगा इसमें, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। कल इंशाल्लाह इस पे आप प्रोग्राम हम करेंगे तो आपको और ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा कैसे हम इसको प्रोग्राम में इस्तेमाल करते हैं, कैसे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस हम इस्तेमाल करते हैं, और हम देखेंगे भी, और हमें देखेंगे कॉल बाय वैल्यू में क्या बाकी चेंज होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर्स अलग होते हैं तो फॉर्मल अलग होते हैं, और हम रेफरेंस में भी देखेंगे कि एक्चुअल पैरामीटर्स अगर हम फॉर्मल पैरामीटर्स चेंज करेंगे क्या एक्चुअल पैरामीटर्स भी चेंज होते हैं या नहीं होते हैं, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।